Hello everyone, this is Abhishek with class 9 chapter real number with question and solutions. Here we solve the questions related to rationalization, radicals and some most important question we are going to learn. So let's start. Here first question is rationalize the denominator of each of the following. In last classes we have learned about the rationalizing factor and rationalization. In question 1, here we see that the denominator is 2 plus root 3. So rationalizing factor of 2 plus root 3 is 2 माइनस रूट 3. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज रेशनलाइजेशन और व्हाट आर रेशनलाइजिंग फैक्टर. यहाँ देखते हैं कि 1/2 प्लस अंडर रूट 3 में जो हमारा डिनोमिनेटर है 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 माइनस अंडर रूट 3. अब रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को जब हम शुरू करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3 के रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 से नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ऊपर आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड बिलो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3. We know that a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Here we can write 2 to the power 2 minus root 3 to the power 2. Here we see 2 minus under root 3 divided by 2 to the power 4 or minus under root 3 to the power 2, that is 3. So here we get the value 2 minus root 3 divided by 1. 4 minus 3 1, hence 2 minus root 3. When we rationalize 1 by 2 plus root 3, we get 2 minus under root 3. This is the our answer. अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. हियर वी हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 3 plus 2 under root 2. Now we find out the rationalizing factor of 3 plus 2 under root 2. तो rationalizing factor of 3 plus 2 under root 2 will be 3 minus 2 under root 2. Now we start the rationalization. For this we multiply both numerator and denominator by its rationalizing factor 3 minus 2 root 2 by 3 minus 2 root 2. यहाँ हम लोग जानते हैं कि दोनों नंबर सेम है. दैट मीन्स 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर एंड वी नो डैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर. हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द a प्लस बी टू द पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो वी कैन ब्रेक इट 3 to the power 2 minus
2ab 2 into 3 into 2 root 2 and b square 2 under root 2 to the power 2 divided by 3 to the power 9 and 2 root 2 to the power 2, that is 2 2 ja 4 2 ja 8. We get 9 minus 2 2 ja 4 3 ja 12 root 2 plus 2 root 2 square is equal to 2 2 ja 4 2 ja 8 divided by 9 minus 8 1. Here we get the value 9 plus 8 is equal to 17 minus 12 root 2 divided by 1, that is solution 17 minus 12 root 2. Come to the next question, that is find the values of a and b in each of the following. नीचे दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग को रेशनलाइज करना है इस तरीके से ताकि ए और बी का वैल्यूज हम लोग निकाल सके। तो चलते हैं, we take root 3 plus 1 is equal to root 3 minus 1. Here we find the rationalizing factor of denominator root 3 minus 1 is equal to root 3 plus 1. यानी हम लोग को यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 को रेशनलाइज करना है। ये इरेशनल नंबर है जिसको हम लोग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो दिए हुए नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 माइनस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा रूट 3 प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को रेशनलाइज करने के लिए इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग इसके डिनोमिनेटर की रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ हम लोग को मिलता है वी गेट रूट 3 प्लस 1 टू द पावर 2 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। Now we also know that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Here we put the value root 3 square plus 2 into a into b plus b square divided by root 3 to the power 2 will be 3 and 1 to the power 2 will be 1. Here we get under root 3 square, this will be 3 plus 2 root 3 plus 1 divided by 2. 3 plus 1 4 plus 2 root 3 divided by 2. Here we take common 2 plus root 3 divided by 2, it will be 2 plus root 3. Now compare the LHS and RHS. Hence root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1 is equal to 2 plus root 3 is equal to a plus b root 3 is equal to a plus b root 3. Implies that 2 plus root 3 is equal to a plus b root 3. We compare both sides. We compare the values of a and b from both sides. Then we get the value of a is equal to
2, and the values of b is equal to, here we can say that 1, nothing, that means there is 1 is multiplied, b is equal to 1s. This is the answer. Come to the next question. Same question. Here we have to find the value of a and b by comparing both sides. दोनों साइड में कंपेयर करने के बाद हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले हम इसका LHS लेकर चलते हैं. LHS इक्वल टू 5 + 2√3 7 4 + 4√3. First we have to rationalize the denominator of the given number. So we find out the rationalizing factor of 7 + 4√3 will be 7 - 4√3. Again, for rationalization, we multiply the numerator and denominator by the rationalizing factor of 7 + 4√3. So start 5 + 2√3, and this is 7 + 4√3. We multiply the numerator and denominator by the rationalizing factor of denominator, that is 7 - 4√3 will be multiplied and divided. Here we multiply both. 5 7 जा 35 minus 4 5 जा 20√3 plus 2 7 जा 14√3 plus 2 4 जा minus 4 2 जा 8 into √3 that is 3. And here a plus b into a minus b, we know that is a square minus b square. Here 7 square minus 4√3 square. 35 minus 20√3 plus 14√3 minus 8 3 जा 24 divided by 7 to the power 2 49 and minus 4 to the power 2 16 और √3 to the power 2 3. Here we see 35 minus 24. It will be 35 minus 24. It will be 11. And here minus 20 plus 14 will be minus 6 under √3. Here 49 minus 48, that is 11 minus 6 √3 by 1. We get 11 minus 6 √3. Now LHS is equal to RHS. Both sides are equal. We compare the both side. Both sides. 11 minus 6 √3 is equal to, here a minus b √3. A minus b √3. Here we get the value a is equal to 11 and b is equal to √3 will be cancelled, minus will be cancelled, b is equal to 6. Hence we get a is equal to 11 and b is equal to 6. Come to the point 5. We have to simplify this question. इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लेंगे. तो इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर है √5 प्लस 1 का √5 माइनस 1 और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है √5 प्लस 1. अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर और नीचे नोमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. तो √5 माइनस 1, ये √5 माइनस 1 प्लस √5 प्लस 1
√5 minus 1 into √5 plus 1, here also √5 plus 1। यहाँ देखते हैं दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ √5 प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हमें मिलेगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab 2√5 और प्लस b 1। ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1। यहाँ तोड़ देंगे तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab 2√5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1। फिर आगे चलते हैं। 5 प्लस 1 दैट इज 6 माइनस 2√5 अपॉन 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2√5 अपॉन 4। both has the same base then we can take 4 as the base। here 6 minus 2√5 plus 6 plus 2√5। here minus 2√5 plus 2√5 cancel, 6 plus 6 12 divided by 4, 4 3 is 12, that is the value 3। यानी इसका जो मान हो गया वो कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस √3। वी कैन राइट इट 1 बाई एक्स द रेसिप्रोकल ऑफ x 1 बाई एक्स एज 1 बाई 2 प्लस √3। वी रेशनलाइज द 1 by x that is 1 by 2 plus √3, then we multiply numerator and denominator by its rationalizing factor that is 2 minus √3। अब 2 minus √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 plus √3 का rationalizing factor है तो हमें मिलेगा 2 minus √3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर that is 2a स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ हमको मिलेगा 2 माइनस √3 बाई 4 माइनस 3 दैट इज 2 माइनस √3। अब हमें मिल गया x का वैल्यू 2 प्लस √3 और 1 बाई एक्स का वैल्यू 2 माइनस √3। अब चूंकि हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं 1 और 2 को। वी गेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 कैंसिल एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 to 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमें मिलता है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4 4 जा 16 x कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर plus 2 is equal to 16। Here we get x square plus 1 by x square, 2 will be minus from 16 we get 14, that is x square plus 1 by x square is equal to 14। This is our answer। x का वैल्यू हमें मालूम था, हमने 1 बाई एक्स का वैल्यू निकाल लिया। 1 बाई एक्स के वैल्यू को हमने रेशनलाइज कर दिए तो हमें मिल गया 2 माइनस √3
अब x का वैल्यू और 1/x का वैल्यू हमें मिल चुका है, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हमें x + 1/x का वैल्यू 4 मिल गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो इस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू जो है हमें 14 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडिकल्स। रेडिकल्स में हम जानते हैं कि अगर a⁴ एंड a⁴ दैट इज बेस अगर सेम है तो हम लोग उसके पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6⁵ मल्टीप्लाई 6⁵ दोनों का बेस जो है, दोनों का जो डिजिट है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें रूल नंबर 1 लागू होगा। तो हम क्या करेंगे, 6 के दोनों पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज 6⁵ के दोनों पावर को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 6⁵ 5 और 5 दोनों का बेस सेम है, दोनों जुड़ जाएगा 2 + 3 दैट इज 6⁵ 5/5, 5 1 जा 5 दैट इज 6⁵1, दिस इज 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5⁶/7 अपॉन 5⁵2/3। यहाँ देख रहे हैं रूल नंबर 3, अगर किसी दो संख्या का बेस सेम हो और वे इस तरीके के फॉर्म में हो, a/a⁴p अपॉन a⁴q के फॉर्म में हो और दोनों का बेस जो है बिल्कुल सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5⁶/7 डिवाइडेड बाई 5⁵2/3 दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5⁶/7 माइनस 2/3। 5⁵, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 7 3 जा 21, 3 6 जा 18 और 7 2 जा 14। ये हमारा हो गया 5⁵18 माइनस 14 दैट इज 4/21। एग्जाम्पल 8 में आते हैं। यहाँ दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि a⁴m इंटू b⁴ भी अगर m हो तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनका पावर हो जाता है m। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर जो है बिल्कुल सेम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5⁴ तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और 1/4। सिमिलरली रूल नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी नंबर का पावर m है और उसका होल पावर n है, तब ये क्या हो जाता है, 1⁴ a का पावर mn हो जाएगा। तो यहाँ 1/3 का पावर 4 का होल पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का पावर 4 का होल पावर 1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/3 का पावर 4 पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/3 2 दैट इज 1/3 3 जा 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हमें वैल्यूज इवेल्यूएट करना है। पहला क्वेश्चन है 49 टू दी पावर 1/2। तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 2। 7 7 जा 49 और होल टू दी पावर 1/2। पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 टू दी पावर 2 इंटू 1/2। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई, ये 2 2 कैंसिल, ये हुआ 7 का पावर 1, दैट इज आंसर 7। 81 किसका स्क्वायर है? तो 9 का स्क्वायर है हम लोग, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 2 टू दी पावर होल 3/4। या सबसे सिंपलेस्ट नंबर में अगर हम इसको व्यक्त करें तो 81 इज द, वी कैन राइट 81 एज ए 3 टू दी पावर 4। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। वी कैन राइट 3 टू दी पावर 4 होल 1/3/4। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 का पावर 4 इंटू 3/4। 4 4 कैंसिल, दिस इज 3 टू दी पावर 3 एंड 3 का पावर 3 होता है 27। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा पोलिनोमियल से। तो ये हमारे रियल नंबर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा रियल नंबर चैप्टर जो है यहीं समाप्त होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का पोलिनोमियल है, जिसका वीडियो कल शाम तक आ जाएगा। तो बी रेडी फॉर पोलिनोमियल्स। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 का होल पावर -1/4। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 का पावर 4 इंटू -1/4। 4 4 कैंसिल, यहाँ हो गया 3 का पावर -1, और 3 का पावर -1 बल्कि रिटर्न है 3 टू दी 1/3 का पावर 1, यानी 1/3 द एंड। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा रियल नंबर चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको रियल नंबर में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के सहारे भी आप हमें वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है सेम डे में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।